how industries were taken away from Maharashtra to other centers. Maharashtra, which has never worked on the basis of what Delhi power center decides, asks them to do, it has only and only worked under this government as per whatever instructions were coming from Delhi. So our fight is very clear. Our fight is against such methods that were used, and we have had the love of the people during the Lok Sabha elections, and we are very, very confident that Uddhav ji will be taking oath again as the Chief Minister of Maharashtra for a long time to come. So in going on, so how tough is going to for you people, ma'am? No, while we know there is this huge challenge coming from the EVMs, there are several questions which are being asked. There are several evidences that have come forward from people which show that there have been, there are some legitimate questions that need to be answered. Somehow Election Commission of India thinks it's absolutely all right not to answer them, and they totally are dismissive about the idea. So while we know these are the disadvantages in front of us, we also know that they have the money, they have the power, they have the agencies with them, they have just about every method possible working in their favor. We will continue to fight the fight because our fight has truth with us, justice with us, and I would say honor and respect with us. These are people who have done disrespectful things, and they will pay a price for it. Ma'am, Party Leader Aditya Thackeray about his comment, ma'am. Actually, if you come to Maharashtra, you would see that every single Maharashtra resident knows that he is a contract minister, that he has given away lakhs and lakhs of crores of public money, of state treasury, to benefit a few of his favorite contractors. Within 10 days, or first 10 days of October, this cabinet has passed at least 1,300 government resolutions which give away doles, which give away thousands of crores to their contractors, and it's a well-known fact. He has just expressed exactly what every single Maharashtrian is feeling right now, and when the time comes, they will make their voices heard through the power of the ballot. Ma'am, today Mr. to take oath as J&K Chief Minister. So who is expected to attend the function from your side? I wouldn't be aware because I am myself attending some standing committee meetings in Delhi, and so are many of our party leaders. And considering we are in the middle of the election has been announced. It is going to be a tough election. It would be an election where we will have to put in all our hard work and energy there. I wouldn't be able to tell you that. However, our best wishes are with Omar Abdullah ji. He has won on the popular mandate of the people of Jammu and Kashmir. He has said the right things about why statehood is important and why statehood should be restored, something that Mr. Modi had committed to the people of Jammu and Kashmir. And I hope for last 5 years there was no chief minister in Jammu and Kashmir. He would understand the grievances of the people, he would be the voice of the people, and he will continue for the welfare of the people. Ma'am, he won the election of faking EVM, so how do you see the allegation of fake EVMs as genuine? How it is genuine? I think these are very genuine concerns. There are questions in the minds of the people. We saw an entire wave in Haryana which was against the Bharatiya Janata Party, yet BJP has won as on the basis of the ballot. So the question here is, if there are genuine concerns and if there are challenges, it should be Election Commission's responsibility to ensure that no voter who steps out to vote has any doubt in their mind that EVMs can be tampered. It is, I would say it would be incorrect to be dismissive about these concerns. Every democracy, for it to be healthy, for it to be vibrant, for it to survive, needs to understand that there can be no scope for any feeling that their vote is not being counted or their vote is being manipulated. आगामी 20 नवंबर को इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, तो आपकी पार्टी कितनी मजबूत दावेदार है और क्या दिक्कतें या चुनौतियां आपके सामने हैं? चुनौतियां ऐसी हैं कि सारी सेंट्रल एजेंसीज सरकार के हाथ में हैं। चुनौती ऐसी है कि जब मन चाहा ईडी, सीबीआई, आईटी किसी के भी घर पे धरना दे देती है, किसी को भी जेल में भेज देती है। चुनौती ऐसी है कि अंधाधुंध पैसा लूट लिया गया है महाराष्ट्र से, और वो अंधाधुंध पैसा जो हो रहा है इस्तेमाल इसी चुनाव के लिए होगा। चुनौती इसकी भी है कि वो लोग जिन्होंने संविधान को दरकिनार कर गद्दारी से सरकार बनाई, वो जो गद्दारी सिर्फ पार्टियों से नहीं की, उन्होंने गद्दारी महाराष्ट्र वासियों से की। उन्हीं का पैसा लूटकर अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये हमारे लिए एक चुनौती हैं, पर हम ये जानते हैं कि जनता का अपार प्रेम और विश्वास उद्धव जी के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है, और वो हम पे विश्वास जताते हुए हमें सरकार बनाने की जिम्मेदारी देंगे, और वो जिम्मेदारी उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी मुख्यमंत्री के रूप में भली भांति निभाएंगे। मैम, महाराष्ट्र में पहले एक ही सेना थी, शिवसेना साहब उसके नए मुख्यमंत्री बन गए, महाराष्ट्र
कितना मुश्किल है, या आप कितनी मजबूती के साथ उनका मुकाबला करेंगे? कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं बहुत आसान है। हर चुनाव, एक शिवसेना, दो शिवसेना, हर चुनाव एक नया पड़ाव लाता है। पर ये जो काम किया है, ये गद्दारी वाली शिवसेना बनाने का काम किया है, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को से लेकर हम सारी चुनौतियाँ हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक उस पर वर्डिक्ट दिया था कि ये जो काम हुआ गवर्नर से लेकर, फ्लोर टेस्ट से लेकर और पार्टी को तोड़ने के काम तक लेकर, उसमें सब में इलीगैलिटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है। तो वो लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ ही रहे हैं। तो ये जनता जानती है कि ओरिजिनल शिवसेना कौन सी है। जनता का प्रेम हमने देखा है लोकसभा चुनाव में। तो ये हमारे लिए चैलेंज ये नहीं है कि दो शिवसेना है, चैलेंज ये है कि एक गद्दारों वाली है, जिन्होंने पीठ में अपनी पार्टी के साथ खंजर घोंपा, साथ ही साथ महाराष्ट्र वासियों के साथ काम किया है। और वो लड़ाई हम लड़ेंगे, जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे। और हमारे साथ जो हुआ है वो आने वाले समय में कोई भी अलग दूसरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश भी ना करे, ये हमारा पूरा लड़ाई रहेगी। मैम, हरियाणा इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक किया गया और उसके साथ गलत चीज़ें हुई। राउत साहब का भी कल बयान आया कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं, बहुत सारे कंसर्न सिटीजन्स ने उठाए हैं, बहुत सारे सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने उठाए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही है। और मैं मानती हूँ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी के भी मन में थोड़ी सी भी शंका है, उस शंका को दूर करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। देश की प्रजातंत्र और देश का संविधान किसी तरीके से हानि में ना पहुंचे, उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर होती है। और अगर इतने सारे लोग डाउट उठा रहे हैं, आपने हरियाणा में पूरा एक माहौल देखा था जो बीजेपी के खिलाफ था, फिर भी अगर ईवीएम मशीन्स में इस तरीके का आ रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता है। सत्य है, नहीं है, दिक्कतें हैं, नहीं हैं, वो अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताएं। पर वो जिस तरीके से डिसमिस कर देते हैं, एक वैलिड कंसर्न को डिसमिस कर देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हर मेंबर को लगता है कि मेरा वोट वैलिड हुआ, नहीं हुआ, जिसको वोट करना था हुआ, नहीं हुआ। मैम, दूसरा ये है कि जो बड़े नेता हैं उन्होंने शिंदे साहब के बारे में कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्टर हैं। ऐसा उन्हें क्यों कहना पड़ा? क्या वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ की महाराष्ट्र की जनता भी जानती है कि इन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र को लूटने का काम किया है, महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम किया है। अब वहाँ के बच्चे से पूछ लेंगे ना, वो ये कहेंगे ये लोग पन्नास खोके एकदम ओके वाले लोग हैं जिन्होंने गद्दारी की है। अब वहाँ के छोटे बच्चों से भी पूछ लेंगे ना, ये मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं या कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्टर है, वो बच्चा भी कहेगा कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है कि महाराष्ट्र जो एक प्रोग्रेसिव वेल डेवलपिंग स्टेट है, जो रीढ़ की हड्डी है पूरी केंद्र की ही नहीं पूरे देश की, आर्थिक राजधानी है मुंबई, उधर उसको सिर्फ लूटने का काम किया है। अक्टूबर के पहले 10 दिन में लाखों करोड़ों के गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस पास कर दिए गए हैं, 1300 से ज़्यादा किए हैं। ये कहाँ संवैधानिक हैं? तो उन्होंने वही इजहार किया है जो महाराष्ट्र की जनता कह रही है, घर का बच्चा कह रहा है, घर का